Hi guys, my name is Ankit Dixit and welcome to the channel in English Revolution. So today I am here for specially one thing. Today I will teach you a very important topic. Before the topic, I would like to tell you about English. English, many people have a confusion in English. They have lack of confidence, they have lack of fluency, they do grammatical mistake, they have not cleared the portion of writing and speaking, listening, and reading. If you want to speak English, if you want to be a good fluent in English, so you will have to do one thing, that you will have to use a psychological process. That process says you must do the conversation, you must write in English, you must think in English, you must listen English programs, channels, you must do activity more than if it is possible. So guys, today I will tell you about English. In English, there are a lot of things we have confusion how to make the sentences. In the last video, I talked about how to make the sentence framing. With the help of vocabulary, with the help of grammar, we make the sentences. But apart from that, there are many things. There are several things, multiple things. We must have a knowledge. If we must have a knowledge, if we have a knowledge, then we can easily make the sentences. If we have a knowledge, then we can make good sentences, we can speak long sentences, we can have good fluency in English. What we see in English mostly, we see first thing is we see that your grammar portion should be clear. You should not do any kind of the grammar error whenever we speak English. First, you need to remind that grammatically sentence should be right, whether it's written portion or it's speaking. So first, grammar should be right. Apart from the grammar, you must have the good knowledge, source of vocabulary. You must have a good stock of vocabulary. If you have a good stock of vocabulary, you can easily make the long sentences. You can speak every verse. So how to speak that? So you need to improve your vocabulary portion also. Third thing is that should have good fluency. If you have a good fluency in English, then people are more inspired by your speaking. You can speak good English if you have a good fluency in English. So if you want to improve your fluency, you should try to get atmosphere of English. Apart from it, some other thing if I see, then they check your voice and accent, your pronunciation. Some people speak wrong, like sure, English, it's English, right? Wish, Vikas, they speak Vikas. So their pronunciations are very wrong. And in English, if you change any pronunciation, your sense will be also changed. Suppose you are saying, I am leaving the Gurgaon, right? You want to say that, you want to message that I am leaving Gurgaon, I am living in Gurgaon. To leave is a different thing, and I am living in Gurgaon, it's also a different thing. But the both have a opposite meaning of each other. I am living in Gurgaon और आई एम लीविंग गुड़गांव. तो लीविंग मीन्स छोड़ना, मैं गुड़गांव को छोड़ रहा हूँ, या आई एम लीविंग इंडिया, या आई एम लिविंग इन इंडिया. तो बोथ हैव अपोजिट मीनिंग. एक तो छोड़ना होता है और एक रहना होता है. सो यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, योर एक्सेंट, and whenever we speak English, we will not use like these kind of sounds should not be there. So you must speak with the fluency, with the good confidence level, and whenever we speak English, we will use our enthusiasm, we will use our confidence level, we will use our energy. You will not murmur. If you speak in the mouth, if you murmur, then people will not appreciate you. Apart from these, you must have the face expressions. If you have a good face expressions and body language,
people appreciate your language. They appreciate whether you speak Hindi or English. You must have face expressions. You must have a body language. So it was an introduction of about the short, the fluency, your voice and accent, your grammar, your vocabulary. 4 to 5 things must be the clear to you very pretty clearly. And you must have a good new vocabulary, stylish vocabulary, whatever is going on in the market nowadays, in the newspaper people are using. And you should speak English officially. You should speak officially English, as you should see there how they are speaking. You should try to imitate the good speaker, whoever is looking good to you. There are many good speakers in India, in America, and England, UK. More celebrities are there who speak good English. So it was all about the introduction of English. So today I'm telling you some new things so that you can improve your knowledge of English. I am here to help you. I'm your as an English friend. You can treat me. You can call me English friend. I will help you anytime, anywhere, whenever you have a problem in English, whether it's in writing, it's reading, listening, or speaking. So today I'm telling you that one thing, that is the word is ever. EVER. It's a ever. There are many uses of ever in English. If we see the mean of English, see the mean of ever is called in Hindi, it's called kabhi. But it has a various use in English. It has a multiple use, like a previous topic I taught. So I'm telling you the ever. Ever means hota hai kabhi, and there are many ever in English. First is ever is a forever. 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 Forever means हमेशा, हमेशा के लिए. You can use it as like a always. Always का मतलब ये होता है हमेशा के लिए. Forever का मतलब ये होता है हमेशा के लिए. अब क्या करना है आपको, सेंटेंस कैसे बनाना है इससे. सेंटेंस में क्या होगा, आपको ग्रामर बस ध्यान रखनी होती है. और ग्रामर क्या ध्यान रखना होता है, आपको टाइम ध्यान रखना होता है. यू नीड टू रिमेंबर द टाइम, कि ये प्रेजेंट का टाइम है या पास्ट का टाइम है या फ्यूचर का टाइम है. तो वन थिंग वी विल रिमाइंड द टाइम. सेकेंड थिंग वी विल रिमाइंड द वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट. It's a question, it's interrogative sentence, is it interrogative sentence or it's answer or it's negative answer. तो क्योंकि अलग अलग प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं इंग्लिश में. एक तो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम वर्ड में सेट करना होता है. दूसरा क्वेश्चन है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बनेगा. आंसर है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बनेगा. नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव आंसर है, मना करना है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ बनेगा. तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है. क्वेश्चन करते वक्त हम क्वेश्चन की तरह पुटअप करेंगे और आंसर के देते वक्त हम आंसर की तरह सेंटेंस पुटअप करेंगे. मना करते समय मना करने के लिए आपको सेंटेंस बनाना होगा, क्योंकि ये नहीं करना होगा. कभी कभी हम आंसर देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे आपने खाना खा लिया, यू हैव टेकन फूड, तो गलत है. तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हैव यू टेकन फूड, दिस इज राइट, क्योंकि क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह बनाना है हमको और आंसर को आंसर की तरह बनाना है. और तो मैं पहली चीज ध्यान रखिए टाइम. तो अगर मुझे इससे सेंटेंस बनाना है तो मैं बस टाइम को अकॉर्डिंग देके टाइम वर्ड सेट कर देना है. मैंने कहा मैं आपको हमेशा हमेशा याद करूंगा, तो टाइम हमारा फ्यूचर का है तो मैं होता है आई, फ्यूचर में लगा देते हैं विल. याद करना होता है रिमेंबर या मिस, आपको होता है यू, हमेशा के लिए होता है फॉरएवर. सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई विल मिस यू या रिमेंबर यू फॉरएवर. मैं इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, अमेरिका चला जाऊंगा, तो आई विल लीव इंडिया फॉरएवर. क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं कि आप इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, विल यू लीव इंडिया फॉरएवर. मैं नहीं छोड़ूंगा हमेशा के लिए, आई विल नॉट लीव इंडिया फॉरएवर. अब छोड़ना कई प्रकार की चीजें होती है. एक तो कोई जगह छोड़ना, वो लीव होता है, LEAVE. थोड़ी सी ग्रामर वोकैबुलरी के बारे में बात कर लेते हैं. एक तो लीव होता है छोड़ना, बहुत सारी चीजें होती हैं इंग्लिश के अंदर और भी चीजें छोड़ते हैं. एक छोड़ना होता है गिव अप.
गिव अप होता है किसी आदत को या किसी चीज को छोड़ना। जैसे मैं स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, आई विल गिव अप स्मोकिंग फॉर एवर। गिव अप के बाद आपको वर्ब में एक्शन प्लस आईएनजी लगानी है। आई विल गिव अप स्मोकिंग फॉर एवर, वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करनी होगी। मैं ड्रिंक करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, आई विल गिव अप ड्रिंकिंग फॉर एवर। मैं पान मसाला खाना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, आई विल गिव अप पान मसाला फॉर एवर। मैं सब्सिडी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेट मी बिकम द रिच, आई विल लीव सब्सिडी फॉर एवर। सो गाइस, छोड़ना एक तो होता है लीव, एक होता है गिव अप, एक और होता है छोड़ना, किसी बंदे को कहीं भी छोड़ना, वो होता है ड्रॉप। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए हॉस्टल में छोड़ दूंगा, आई विल ड्रॉप यू इन हॉस्टल फॉर एवर। तो छोड़ना 3 प्रकार से बताया मैंने, गिव अप, लीव और ड्रॉप। आई विल ड्रॉप यू फॉर एवर। तो फॉर एवर के बारे में होता है हमेशा के लिए, और मना करना है, और भी सेंटेंस फ्यूचर के अलावा हर जगह बना सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में बनेगा। मैंने स्मोकिंग करना हमेशा के लिए छोड़ दिया है, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग फॉर एवर। मैंने झूठ बोलना हमेशा के लिए छोड़ दिया है, आई हैव गिवन अप टेलिंग अ लाई फॉर एवर। सो यू कैन मेक मल्टीपल एग्जांपल बाय द फॉर एवर, बाय प्रैक्टिस यू कैन मेक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एवरीवेयर। मैं छोड़ना चाहता हूँ स्मोकिंग हमेशा के लिए, आई वांट टू, चाहता हूँ तो डिजायर यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, आई वांट टू गिव स्मोकिंग फॉर एवर। मैं यार ड्रिंकिंग करना हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव ड्रिंकिंग फॉर एवर। आपको छोड़ना चाहिए, यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग फॉर एवर। तो इट वाज ऑल अबाउट द फॉर एवर। आपको जरूर छोड़ना चाहिए, यू मस्ट गिव अप ड्रिंकिंग फॉर एवर, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग फॉर एवर। एंड यू कैन यूज एवरीवेयर, विल के साथ, मस्ट के साथ, यू मस्ट बहुत यूज होता है आजकल, मस्ट, MUST, यू मस्ट, यू शुड, एवरीवेयर वी कैन यूज इट। You should give up smoking forever, I'll miss you forever, you must miss me forever. You study forever, you work hard forever, and you will work hard forever. You will be punctual forever. It's a very important topic, forever, and we use in multiple ways. तो forever होता है हमेशा के लिए। Next, second बात करते हैं ever के बारे में। एक होता है ever best। ever best होता है अब तक का सबसे अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा है कोई भी चीज, अच्छा या अच्छी। मैंने कहा आप मेरे अब तक के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, तो आप होता है यू, है तो आर, यू के साथ आर लगता है, यू आर माई एवर बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई एवर बेस्ट फ्रेंड। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी जॉब है, that this is my ever best job। आज का मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, today is my ever best day of my life। ever best होता है अब तक के सबसे अच्छा, अब तक का सबसे अच्छा। ये मेरा सबसे अच्छा मंथ है, it was या it is my ever best month। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो पास्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं, इट वॉज माई एवर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। फ्यूचर में अभी यूज करना है तो विल लगा देंगे, विल के साथ भी लग जाएगा, इट विल बी माई एवर बेस्ट परफॉर्मेंस। होनी चाहिए, इट मस्ट बी योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस। मस्ट का मतलब जरूर होनी चाहिए, इट मस्ट बी योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड इट विल बी माई एवर बेस्ट। तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हु इज योर एवर बेस्ट टीचर, विच इज योर एवर बेस्ट इंस्टीट्यूट, हु इज योर एवर बेस्ट फ्रेंड। सो कुछ लोग बेस्ट एवर भी बोलते हैं इसको, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, बेस्ट एवर या एवर बेस्ट, लेकिन एवर बेस्ट थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश लगता है, तो एवर बेस्ट। और बात करें एवर के बारे में, एक एवर बेस्ट होता है, एक होता है अब तक का सबसे पहला, एवर फर्स्ट। एवर फर्स्ट होता है अब तक का सबसे पहला, अब तक का सबसे पहला, सबसे पहला, ठीक है ना।
जैसे ये मेरी अब तक की सबसे पहली विजिट है, मैं इससे पहले कभी नहीं आया। आई हैव नेवर बीन बिफोर, दिस इज माई एवर फर्स्ट विजिट। ये मेरी अब तक की सबसे पहली सैलरी है, दिस इज माई, ये मेरी अब तक की सबसे पहली सैलरी है, दिस इज माई एवर फर्स्ट सैलरी। आप मेरे अब तक के सबसे पहले कस्टमर हैं, यू आर माई एवर फर्स्ट कस्टमर। ये मेरा अब तक का सबसे पहला ऐसा एक्सपीरियंस है, इट्स माई एवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये मेरा अब तक का सबसे पहला इंसिडेंट है, तो इट्स माई एवर फर्स्ट इंसिडेंट। एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है। इंसिडेंट होता है कोई भी घटना, इंसिडेंट INCIDENT, और एक एक्सीडेंट होता है ACCIDENT। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, जो कि सड़क से नारद हो सकती है या कोई भी क्राइम को लेकर हो सकती है। सो गाइस, तो नाउ आई टेल अबाउट सम मोर एवर, और भी चीजें बताता हूँ मैं आपको। तो एवर फर्स्ट, एवर बेस्ट, फॉर एवर, एक होता है एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग होता है गाइस सदाबहार। सदाबहार होता है एवर लास्टिंग, जिसका कभी जलवा या जिसका कभी क्रेज न जाए, हमेशा हमेशा तक चलने वाला। एक एवर लास्टिंग होता है, एक एवर ग्रीन होता है, या एक एवर, या फिर आप लॉन्ग लास्टिंग भी उसको बोल सकते हैं, नॉट एवर, लॉन्ग लास्टिंग। These all three have a same meaning, everlasting, evergreen और long lasting। सबसे अच्छा लगता है everlasting। तो जैसे हम पुराने गाने हमारे सदाबहार हैं, कभी भी सुनो हम बोर नहीं फील होते हैं। Old songs are everlasting। सूट पैंट की फैशन सदाबहार है, सूट पैंट फैशन इज everlasting। फिटनेस फैशन इज everlasting। गोल्ड ज्वेलरी फैशन इज everlasting। इंग्लिश इज everlasting लैंग्वेज। सो गाइस, एवरलास्टिंग होता है सदाबहार। बुलेट बाइक हमारी सदाबहार होती है, बुलेट बाइक इज एवरलास्टिंग। इंडियन कल्चर इज एवरलास्टिंग। जो हमारी इंडिया की चीजें हैं वो एवरलास्टिंग है। इंडियन प्रोडक्ट्स आर एवरलास्टिंग एंड इंडियन प्रोडक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग। भैया चाइना का क्या प्रोडक्ट होता है, 4 दिन चल गया खराब हो गया, बट इंडियन प्रोडक्ट्स आर एवरलास्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग। आई लव इट। सो गाइस, एवरलास्टिंग होता है, और एक और होता है एवर फर्स्ट होता है, बोल दिया मैंने। एक होता है देन एवर, THANEVER। देन एवर होता है पहले से, पहले की अपेक्षा में, पहले के अकॉर्डिंग देन एवर। जैसे आप पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं आज आप, तो यू आर लुकिंग स्मार्टर देन एवर। ये कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी, वहां पर ER लग जाएगा और देन लग जाएगा। कंपेरेटिव डिग्री है हमारी। यू आर लुकिंग स्मार्टर देन एवर। इंडिया पहले से ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहा है, तो इंडिया इज डेवलपिंग फास्टर देन एवर। इंडिया इज डेवलपिंग फास्टर देन एवर। काफी बारिश पहले से तेज हो रही है। इट इज रेनिंग हार्डर देन एवर, इट इज रेनिंग हार्डेस्ट देन एवर। देन एवर होता है पहले से। तो गाइस, और भी हैवर्स हैं हमारे, देयर आर मोर हैवर्स इन इंग्लिश। तो आप एवर से सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे क्या आप कोई भी काम कभी करते हैं, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डू यू एवर एक्शन। डू यू एवर एक्शन करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में टाइम हमारा डू लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप कभी एक्सरसाइज करते हैं, तो डू यू एवर एक्सरसाइज काम का नाम पूछ सकते हैं। क्या आप कभी मार्केट जाते हैं, डू यू एवर गो टू मार्केट। क्या आप कभी सब्जी खरीदते हैं, डू यू एवर बाय द वेजिटेबल। क्या आप कभी स्टडी करते हैं, डू यू एवर स्टडी। क्या आप कभी गोल्ड खरीदते हैं, डू यू एवर बाय द गोल्ड। क्या आप कभी मूवी देखते हैं, डू यू एवर वॉच मूवी। तो क्या आप ऐसा कभी करते हैं, तो डू यू एवर एक्शन करते हैं, तो डू लगा देंगे यहाँ पर, एवर मिस होता है कभी। अब आंसर देना है आपको, तो आंसर में क्या होगा, आंसर में आपको लगा देना है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स आई एक्शन, उस काम का नाम लग जाएगा जो भी आप करते हैं।
हाँ मैं स्टडी करता हूँ, ऑफ कोर्स आई स्टडी। हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ऑफ कोर्स आई वॉच, ऑफ कोर्स आई स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं मूवी देखता हूँ, ऑफ कोर्स आई वॉच मूवी। अब मना करना है, नहीं मैं कभी मूवी नहीं देखता। नो आई नेवर एक्शन, उस काम का नाम लगाते ना जो भी आप नहीं करते। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर टेल लाई, मैं कभी मना नहीं करता, आई नेवर डिनाई। मैं कभी स्मोक नहीं करता, आई नेवर स्मोक। मैं कभी शराब नहीं पीता, आई नेवर टेक केयर। मैं लोगों को कभी नहीं ठगता, आई नेवर चीट द पीपल। मैं कभी गाली नहीं देता, आई नेवर अब्यूज। मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करता, नेवर हर्ट एनीवन, आई नेवर हार्म एनीवन, आई नेवर वांट बैड फॉर एनीबॉडी। तो नेवर होता है कभी नहीं। क्या आपने ऐसे कभी करा है तो इसको आप एवर को किया है तो हैव यू एवर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि काम हमारा कंप्लीट हो चुका है तो वहां पर हम हैव लगा देते हैं। हैव यू एवर एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर, अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो सी का हो जाएगा सीन। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या आपने कभी अंग्रेज से बात करी है, हैव यू एवर टॉक टू फॉरेनर। क्या आपने कभी पसीना बहाया है, हैव यू एवर स्वेटेड आउट। क्या आपने कभी रिक्शा चलाया है, वही बचपन में क्या होता था ऐसे चला लेते थे, रिक्शा छोटा वाला होता है बस वाला। हैव यू एवर ड्रिवन या पुल्ड द रिक्शा, ड्रिवन नहीं लगेगा और पुल्ड लगेगा, हैव यू एवर पुल्ड द रिक्शा। क्या आपने कभी उपदेश सुना है, हैव यू एवर लिसन टू प्रीच। क्या आपने कभी नॉवेल्स पढ़े हैं, हैव यू एवर रेड द नॉवेल्स। सेम हो जाएगा आंसर, हाँ मैंने पढ़े हैं उपदेश, कई सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, तो सेम हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ मैंने उपदेश पढ़े हैं, ऑफ कोर्स आई हैव रेड द नॉवेल्स। हाँ मैंने उपदेश सुने हैं, ऑफ कोर्स आई हैव लिसन टू प्रीच। उपदेश होते हैं अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, नोवेल होती हैं होली बुक्स लाइक गीता, रामायण। सो आई हैव टॉक टू फॉरेनर, बाइबल, कुरान। सो गाइस गुरु ग्रंथ साहिब ये हमारे नॉवेल्स होते हैं। ऑफ कोर्स आई हैव रेड नॉवेल्स। क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स आई हैव रेड द नॉवेल्स। मैंने कभी नहीं पढ़े हैं तो आई हैव नेवर रेड द नॉवेल्स। कभी नहीं होता है नेवर, आई हैव नेवर रेड द नॉवेल्स। एक तरीके से और हम यहाँ पर मना कर सकते हैं, आई डोंट एवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता। आई डोंट एवर गो देयर की तरह भी मना कर सकते हैं, आई डोंट एवर एक्शन। नेवर अगर आपको नहीं लगाना है तो वैसे मना कर सकते हैं, आई डोंट एवर स्मोक, आई डोंट एवर गो देयर। तो बट नेवर ज्यादा अच्छा लगता है, क्या डोंट लगाएंगे आप तो लॉन्ग हो जाएगा, आप सिंपली बोल सकते हैं आई नेवर स्मोक। तो और भी एवर के यूज होते हैं, जैसे वो क्या होता है, वो हमें WS फैमिली के साथ में जोड़ देना होता है, यानी वर्ड के साथ लगा देंगे। WS फैमिली से क्वेश्चन करते हैं, एक होता है वर्ड के साथ नेवर लगा दे तो मीनिंग चेंज हो गया। वोकैबुलरी में क्या होता है, एक के साथ कोई चीज ऐड हो गई तो उसका सेंस मीनिंग दोनों चेंज हो जाती है। सो व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। ये शो करा रहा है थिंग्स नेम, टू शो थिंग्स नेम, इस चीज का नाम शो करा रहा है। जैसे आप जो कुछ भी बनाएंगे मैं खा लूंगा, तो आप यहाँ पर इसको सेंटेंस लगा के इसको ऐड करके व्हाटएवर ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस और वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। व्हाटएवर आप जो कुछ भी बनाएंगे तो बात फ्यूचर की हो रही है। व्हाटएवर यू विल प्रिपेयर आई विल टेक दैट, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं आपकी बात को मानूंगा। व्हाटएवर यू विल से आई विल फॉलो यू, आप जो कुछ भी दिलाएंगे मैं ले लूंगा। Whatever you will get, I will take it. मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो whatever I will say, I will speak the truth, accept truth, I will say nothing. जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। Whatever happens, it happens for good. तो whatever से सेंटेंस आप बना सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं wherever होता है जहां कहीं भी। इट इज शोइंग द लोकेशन नेम, टू नो द लोकेशन,
जहां कहीं भी, आप जहां कहीं भी जाएंगे आप मुझे याद करेंगे। wherever you will go you will miss me। तो ये शो करा रहा है टू शो द लोकेशन, ये लोकेशन को इंडिकेशन कर रहा है। टू शो द लोकेशन wherever you will go you will miss me, आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको ATMs मिल जाएंगे। wherever you go you will see the ATMs, आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको अच्छे और बुरे हर तरह के लोग मिल जाएंगे। wherever you go and wherever you will go you will see the both kind of people, good or bad। मैं जहां कहीं भी हूं खुश हूं, तो मैं जहां कहीं भी हूं तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। wherever I am happy, जहां भी आप रहो खुश रहो। wherever you live you be happy, चाहे आप इंडिया में रहो या अमेरिका में। वेदर होता है चाहे, चाहे आप इंडिया में रहो या अमेरिका में, वेदर यू लिव इन इंडिया और अमेरिका। तो आप जहां कहीं भी रहो खुश रहो, हेल्थी रहो, हैप्पी रहो। wherever you live you be healthy, वो जहां कहीं भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। wherever is he I will find him out। wherever मैं आप जहां कहीं भी जाऊंगा आपको याद करूंगा। wherever I will go I will miss you, आप जहां कहीं भी जाएं मेरे को याद करना, मैं आपको आ जाऊंगा हेल्प करने के लिए। wherever you will go या wherever you go you miss me I will come to help you and I will come to assist you। तो wherever लगा के आपको सेंटेंस बना देना है। नेक्स्ट है हमारा whenever। whenever होता है जब कभी भी, जब कभी भी या जब भी, सेम मतलब है दोनों का, जब कभी भी या जब भी। मैं जब भी गुड़गांव में या जब भी मैं दिल्ली में जाऊंगा तो रेड फोर्ट देखूंगा। whenever I will go to Delhi I will see the red fort। तो जब कभी भी है जब भी, तो ये शो करा रहा है लोकेशन, टू नॉट लोकेशन, टू शो द लॉन्ग टाइम। टू शो द लॉन्ग टाइम मीन्स कैलेंडर टाइम शो करा रहा है। कैलेंडर टाइम मीन्स लाइक डे, मंथ, डेट और ईयर। जब भी आप इंडिया आओ तो मुझे याद करना, मैं आपको हेल्प करूंगा मैं आपकी। whenever you come in India you just come here, you call me, then I will help you। जब भी आप कार खरीदो मेरे को बता देना, मैं डिस्काउंट दिला दूंगा। whenever you purchase the car you tell me I will get you discount। जब भी आप वहां जाओ तो मुझे कॉल करना। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू कॉल मी whenever you go there, आगे या पीछे भी लगा सकते हैं इसको। एक whenever होता है, एक होता है however। however होता है कितना